Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, in the last class we have discussed about exercise 12.1 where we have discussed all the questions of that particular exercise. And today we are starting the new exercise of this particular chapter number 12, that is algebraic expression. And today we are doing the concepts, that is addition and subtraction of algebraic expressions. Okay students, so basically in this particular class we are going to know how can we add and how can we subtract different algebraic expressions. Alright students, so to discuss that students, firstly we will be having an example. For example, have a look at this particular example students. This is like that, Sarita has some marbles along with her, alright, and Amina has 10 marbles, right? 10 more. So whatever be the marbles of Sarita, Amina has 10 more marbles, right students? So Appu says that he has 3 more marbles than the number of marbles Sarita and Amina together have. That means Sarita has how many marbles? We don't know. We know that Amina has 10 more marbles than Sarita. And Appu is saying whatever be the total of this, he is having 3 more marbles. Okay? The sum of this plus 3 more. Alright students. So we have to find out how do you get the number of marbles that Appu has. So students, to know this, it means that we are having the algebraic expressions and we have to solve the equations and expression according to assumption. Alright students. So firstly we don't know about how many marbles does Sarita has, right students? So we'll consider the marble that Sarita is having is x. Right students? If Sarita is having x marbles, then Amina is having x plus 10 marbles, right? If this is marbles of Sarita, then these are the marbles of Amina, right students? Then how many marbles do Appu has, right students? So Appu will be having the total of this like x plus 10 plus x plus 3, right students? These are the marbles that Appu is having. Have a look students. This is like that. Since it is not given how many marbles Sarita has, now we shall take it to be x. Okay, हम x मान लेंगे. Amina then has 10 more. Then it means that Amina is having x plus 10. Right students? Now Appu is saying that he has 3 more marbles than what Sarita and Amina have together. मतलब उन दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं, अप्पू के पास उससे भी 3 ज़्यादा हैं, ठीक है? So we take the sum of numbers of Sarita's marbles, right? Amina's marbles, and then to the sum we'll add 3. Alright students? So that is, take the sum of x plus 10 and 3. So x, the marbles of Sarita, x plus 10, the marbles of Amina, and 3, the marbles of Appu. Alright students, the marbles of Appu in the extra portion, right students? So this is x plus x2 and 10 plus 3, 13. ये हम अभी डिटेल में जानेंगे कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है. Alright students, so एक बार ध्यान से लिखिए. Adding and subtracting like terms. Whenever we are having the addition and the subtraction of algebraic expression students, we do the things according to like and unlike terms. We always add and subtract like terms together. Alright students, so have a look. Let's add 3x and 4x. Now students, this 3x and this 4x, these two are like terms. Alright students, like terms क्या होती हैं? Ignore the numerical coefficient. जो बाकी के वैल्यू की जो बाकी जो वेरिएबल होता है अगर वो सेम आ रहा है, then it means that कि वो like terms है. Right students? तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, 3x प्लस 4x, यहाँ पे मैं x और x, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इस तरह से लिख सकती हूँ ना इसको. तो x और x क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मैंने कॉमन निकाल दिया. बचा क्या? इधर 3 बचा और इधर क्या बचा? 4. ठीक है? सो दिस इज x इंटू 3 प्लस 4, दैट इज 7x. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए यही यहाँ पे है 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स को कॉमन निकाला, 3 प्लस 4. ये किस तरह से किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया है. ठीक है? तो 7 इंटू एक्स दैट इज एक्स, 7x, राइट स्टूडेंट्स.
और आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7x वाई, x और x हमें पता है कॉमन है, तो 3 और 4 कितना हुआ 7, राइट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अब अगर हम 3xy 8xy 4xy और 2xy को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 8 और 4, क्योंकि देखिए ये वाली जो वैल्यू है वेरिएबल वो सब में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन, बाकी सब चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू एक्स वाई दैट इज 14xy, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज 8xy प्लस 4xy प्लस 2xy, 8 into xy, 4 into xy, 2 into xy, xy is the common thing. So we'll have this thing as common. So 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14. So 14 into xy, 14xy. Alright students, तो इसी तरह से हम किसी भी algebraic expression को बनाते हैं addition और subtraction करके. Alright students, ध्यान दीजिए अब. Let us subtract 4n from 7n. This is also the similar case. अब हमने 7n में से 4n को subtract करना है. So this is also 7 into n, this is also 4 into n. n and n are in the multiplication thing. So n और multiply बाहर common निकला तो 7 minus 4 that is 3. So n into 3 that is 3n. Right students? ध्यान दीजिए यही चीज है. So 7n minus 4n is equals to 3n. In the same way subtract 5ab from 11ab. अब 11ab में से 5ab सब्ट्रैक्ट किया, ab कॉमन है तो 11 माइनस 5 6ab, ठीक है, हैव अ लुक, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, Thus the sum of two or more like term is a like term. जब भी हम सम लेते हैं दो या दो से ज्यादा like terms का, तो उसका सम भी क्या आता है, like term with a numerical coefficient equal to the sum of the numerical coefficients of all the like terms, जिसमें वेरिएबल तो सेम रहता है, ठीक है, लाइक टर्म के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होता है, अगर हम वेदर हम सम ले रहे हैं तो उसका सम बन के आएगा, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होकर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट की वैल्यू आएगी, सो अकॉर्डिंगली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट algebraic expression we will add and subtract only and only like terms together, right students? Do remember this thing. Next, similarly the difference between two like terms is a like term with a numerical coefficient equal to the difference between the numerical coefficients of two like terms. Fair enough, right? क्योंकि अगर हमने वेरिएबल सेम रखा है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स अगर हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर तो उसका वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नोट अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द वे लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर अनलाइक टर्म्स दे रखी है तो वो उस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी जैसे लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जर्नल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, मतलब हमें अब नहीं बता रखा, एक एक टर्म नहीं बता रखी, पूरा एक्सप्रेशन बता रखा है, और अगर हमें अब उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल देखिए 4x प्लस 6 एंड 5x प्लस 7, ये डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब मुझे बोला है कि इन दोनों को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 4x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 7, अब मैं 6 के अंदर क्या 5x ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्या मैं 7 के अंदर 4x ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो जब भी मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना होता है, दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा जाए, ठीक है। तो इसमें लाइक टर्म कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? 4x और 5x, ये क्या है? लाइक टर्म है, तो मैं इनको एक साथ में लिखूंगी। सो 4x प्लस 5x, राइट स्टूडेंट्स, और 6 और 7 भी लाइक टर्म है, सो 6 और 7 को भी साथ में लिखेंगे हम, ठीक है। सो 4x एंड 5x, अभी हमने सीखा था ना 4x और 5x लाइक टर्म्स हैं, x और x कॉमन ले रहे हैं, तो 4 प्लस 5 9, 9x बनाइए, एंड 6 प्लस 7 क्या होता है? 13 होता है। तो इस तरह से हम किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो द सम इज, एक बार हमने सम के रूप में लिख दिया कि हाँ इसका सम ये होगा। नाउ वी नो दैट टर्म्स 3x एंड 7x आर लाइक टर्म्स, सो आर 11 एंड -5, राइट। सो हम लिख सकते हैं 3x और 7x को ऐड करके 10x आ रहा है, और 11 और 5 को ऐड करके -5 को ऐड करके 6 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी कैन देयरफॉर सिंप्लीफाई द सम एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखा तो यही हुआ था, अब हमने इनको टुगेदर लिख दिया, रीअरेंज कर दिया बेसिकली, ठीक है।
So it will be 10x plus 6, right students? So hence 3x plus 11 plus 7x minus 5 is equals to 10x plus 6, right students? Simple. हमें टर्म्स को रीअरेंज करके लिखना है ताकि लाइक टर्म्स एक साथ लिखी जा सके और अनलाइक टर्म्स एक साथ लिखी जा सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है? तो हमने ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन ऐड किया, सिंपली हमने एडिशन का साइन ही लगाया है. अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखेंगे. 3x और 7x एक साथ लिखे गए क्योंकि लाइक टर्म्स हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 11 और -5 एक साथ लिखे गए और ये 8z किसी के साथ भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, इसके साथ का लाइक टर्म है ही नहीं. सो स्टूडेंट्स रीअरेंज करने के बाद हमने देखा 3x और 7x कितना होता है 10x, 11 - 5 क्या होता है +6 और ये जो एज इट इज़ है इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, ठीक है? सो ये जो आएगा ये आपका आंसर आएगा इसका. सो नोट वी हैव पुट लाइक टर्म्स टुगेदर. The single unlike term 8z will remain as it is. Therefore, the sum is 10x plus 6 plus 8z. Right, students? जैसे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास. Subtract a minus b from 3a minus b plus 4. So, अब इस टर्म में से हम subtract करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को. Right, students? अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो वो अकॉर्डिंगली सॉल्व होता है. सो माइनस प्लस इज माइनस and minus minus is plus, ठीक है? Minus a plus b. Alright students, observe how we took a minus b in brackets and took care of signs in opening the bracket, rearranging the terms to put like terms together. ठीक है? उसके बाद जैसे हमने किया था ना एडिशन के केस में, उसी तरह से हम वापस सब्ट्रैक्शन के केस में करेंगे. डिफरेंस क्या आएगा, जब भी हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. जनरली अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप यहाँ पे माइनस का माइनस ही उठा के रख देते ना, जबकि माइनस नहीं आना था. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है. अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. सो 3a माइनस a माइनस b प्लस a, ठीक है? और प्लस 4 ये अलग, ये कैंसिल हो गया बिकॉज प्लस b माइनस b 0 होता है, ठीक है? सो 3a माइनस a कितना हुआ 2a. सो दिस इज स्टूडेंट्स 3 - 1 a प्लस 1 - 1 b प्लस 4, ठीक है? 3 माइनस a मतलब 2a, 1 - 1 0b प्लस 4. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए वही चीज़ आ गई ना. तो हम कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2a प्लस 4. सो स्टूडेंट्स वी शैल नाउ सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस फॉर प्रैक्टिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर डूइंग स्टूडेंट्स इज कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस. इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक टर्म्स को एक साथ करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स 12m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10. सो स्टूडेंट्स रीअरेंजिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर, rearranging the like terms together, you have to write this thing only, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं 12m² को, ये एक जैसा है. अब इसके साथ का ही टर्म यहाँ पे है, देखो 4 - 4m², m² लाइक टर्म हुआ ना, सो -4m². अब ये mm वाले एक साथ लिखते हैं, -9m प्लस 5m, ठीक है? और ये -7m. अब ये जो 10 है ना स्टूडेंट्स, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज 12 × m² माइनस 4 × m², दिस इज -9 × m प्लस 5 × m माइनस 7 × m प्लस 10, राइट? इनको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे m² और m² कॉमन है मल्टीप्लिकेशन में, सो दिस इज 12 - 4 × m², राइट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ देखो एडिशन का साइन लगाते हैं. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना तीनों चीज़ें, तो ब्रैकेट लिया मैंने -9. अब ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया इसका मतलब जो जैसे है वैसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है? कोई डिफरेंस मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता,
माइनस यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो अब माइनस यहाँ वाला ले चुका है तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर यहाँ पे माइनस ले चुका है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो एक माइनस अंदर और लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो, तो विल हैव द कन्वीनियंट साइन दैट इज प्लस, राइट स्टूडेंट्स। सो ताकि हम ये चीज़ें एज इट इज लिख सकें। सो -9 + 5 -7 into m + 10, राइट स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, 12 - 4 is 8, so 8m², all right, प्लस, अब ध्यान दो, -9 + 5 is -4, -4 - 7 is -11, ठीक है। सो दिस इज -11m, राइट स्टूडेंट्स, + 10, ठीक है। सो दिस इज 8m² + -11m + 10, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ इसी टर्म को, इसी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, लाइक टर्म्स को एक साथ करके इतना सा एक्सप्रेशन बन चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं की गई थी चीज़ें, सब्ट्रैक्ट नहीं की गई थी चीज़ें, इसलिए हमने इसको रीअरेंज करके प्रॉपर्ली लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 24ab - 10b - 18a फ्रॉम 30ab + 12b + 14a, ठीक है। तो हमें इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, 30ab + 12b + 14a माइनस, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, -24ab - 10b - 18a, राइट। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले तो ये एज इट इज लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद जो ओपनिंग होगा ब्रैकेट का, उसके बाद हम साइंस का ध्यान रखेंगे। माइनस प्लस स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस, सो 24ab, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 10b, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +18a, राइट स्टूडेंट्स। Now we'll have the like terms together. So this 30ab, AB नहीं है, AB नहीं है, AB ये रहा देखो। So this is -24ab, AB नहीं है, AB नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now अब हम ये दोनों टर्म्स लिख चुके हैं। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, 12b, ये b है नहीं है, ये है b स्टूडेंट्स। So this is 10b, अब ये +14a और यहाँ पे +18a। अब हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो AB और AB, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 - 24 AB, AB को कॉमन ले लिया ना, 30 - 24 प्लस B को कॉमन ले लिया, सो 12 + 10 B प्लस 14 + 18 A। ध्यान दो, बहुत सिंपली मैंने ये चीज़ लिख दी है। कॉमन टर्म्स को बाहर लगा दिया ब्रैकेट से और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज एज इट इज लग दिए, ठीक है। 30 - 24 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 6ab, राइट। 12 + 10 इज 22b, 18 + 14 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, दिस इज 32 + 32a, ऑल राइट स्टूडेंट्स। और जो ये एक्सप्रेशन बना है, दिस इज अ रिक्वायर्ड algebraic expressions when we are subtracting these two expressions together, right students, and this is our example number 2. This is it. Looking at the third example students, what is that, from the sum of this, this and this, okay, subtract the sum of this and this. What it mean कि इन तीनों के सम में से इन दोनों के सम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्टली हम इन तीनों का सम निकालेंगे, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज टू ऐड दीज थ्री थिंग्स, ठीक है, दैट इज 2y² + 3yz, ओके। अब इसको हमने किस में ऐड करना है, राइट और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, yz + 2z², राइट स्टूडेंट्स। अब मुझे इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है।
सो इसका मतलब क्या है, मुझे लाइक टर्म्स एक साथ में लिखनी है। अब यहाँ 2y² को 2y² लिख दिया मैंने, ठीक है। अब y² कहाँ पे है, ये रहा y², -y², y² है नहीं है, यहाँ पे y² है नहीं है, मतलब ये y² वाली टर्म्स मैंने लाइक टर्म्स एक साथ लिख दी हैं। अब देखो 3 + 3yz, दिस इज ऑल्सो -yz, दिस इज ऑल्सो +yz, राइट। ये भी एक साथ लिख दिया, यहाँ तक हो चुका है। बचा क्या स्टूडेंट्स, -z², ठीक है, और यहाँ पे +2z², राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी ये चीज़ लिख दी है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। y² को कॉमन ले लिया, 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। yz को कॉमन लिया, 3 - 1, ठीक है, ये 1 है, प्लस 3 - 1, ये भी 1 है, +1, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब z² को कॉमन लेंगे हम, -1 + 2, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब हमने इसको कॉमन ले लिया, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 2 - 1 1y², 3 - 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। सो दिस इज 3yz, ठीक है। नाउ -1 + 2 इज +1, +1z², ठीक है। तो अगर मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया, मतलब कि इन तीनों चीज़ों को ऐड किया, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है हमारा, ध्यान दो, दैट इज y² + 3zx zy + z²। दिस इज द फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स कैसे होगा सॉल्व, हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे ना, पहले हमें इसका सम निकालना है, फिर हमें इसका सम निकालना है सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम निकला होगा ना, उनको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट क्या है, 3y² - z² में से एडिशन करना है -y² + yz + z² का, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, देखिए 3y² और ये y², सो दिस इज 3y² - y² -z² + z², और ये कुछ भी नहीं है तो ये अनलाइक टर्म है, तो इसको साइड पे रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कॉमन लेंगे, 3 - 1 y² + z² -1 + 1, राइट, -1 + 1 + yz। So students, 3 - 1 2y², this is 0 z² + yz. So students, answer is 2y² + yz. सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके क्या आता है, ठीक है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2y² + yz, राइट स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी आएगा ना इसका सम, उसमें से और इन दोनों का जो भी सम आएगा, तो इनके सम में से क्या माइनस करना है, ऊपर वाली चीज। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम दिस, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो अब देखिए क्या करने वाले हम, क्या, इफ दिस इज 1 एंड इफ दिस इज 2, देन यू हैव टू डू 2 - 1, राइट स्टूडेंट्स, 2 - 1 करना है। तो ये क्या है, 2y² + yz माइनस, अब ये वाली चीज देखो, y² + 3zy + z², ठीक है। अब ओपनिंग ब्रैकेट एंड केयरफुली नोट द साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। Now we'll carefully solve this and observe the like terms. This is and this. These two are like terms, so this will be like that. Now these two things. अब ये अनलाइक टर्म है तो ये एज इट इज रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, टू माइनस 1 is 1, 1 - 3 is -2,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कैसे आया, जो हमने पहले इनको ऐड किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने नीचे वाली चीज़ ऐड की, उसके बाद हमने देखा कि जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ रहा था, y square minus 2zy minus z square, and this is the required result of this particular third example, right students? So this is all about the examples of exercise 12.2. In the next class, students will be doing the questions and answers of this particular exercise, that is 12.2. Till then students, do practice hard. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to all of you. Bye bye.